شدید گرمی کے بعد ابر رحمت برسنے سے شہر کا موسم خوشگوار۔ مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش۔ شہریوں کے گرمی سے مرجھائے چہرے کھل اٹھے۔ شملہ پہاڑی، گڑی شاہو، ایبٹ روڈ، کینال بینک میں بارش، مغل پورہ، ہربنس پورہ، گلبرگ، گارڈن ٹاؤن میں بھی بارش۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ مزید 2 روز تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ اسی پر مزید بتائیں گے محمد یاسین۔ جی بالکل، طویل انتظار کے بعد بالآخر آج جو ہے وہ لاہور کا موسم اس طرح خوشگوار ہو گیا کہ اور ابر رحمت برسنے سے جو موسم خوشگوار ہوا تو جو شہری ہیں جو ایک عرصہ سے گھروں میں محبوس تھے وہ بھی انہوں نے بھی سکھ کا سانس لیا ہے، اور کچھ نے تو موسم خوشگوار ہوتے ہی مارکیٹوں کا رخ کیا اور کچھ پارکوں میں چلے گئے اور کچھ مہمان نوازی کرانے کے لیے اپنے اپنے رشتہ داروں کی طرف بھی چلے گئے۔ اور یہاں بتاتے چلوں کہ آج محکمہ موسمیات نے جو یہ بتایا ہے کہ کل بروز اتوار بھی بارش ہونے کا امکان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو ہے وہ بارشوں کا سلسلہ چونکہ شروع ہو چکا ہے اور موسم بھی ایک قدرے خوشگوار ہے، تو کل بھی جو شہری ہیں وہ اس سے مستفید ہوں گے موسم سے۔ اور اس کے علاوہ جو محکمہ موسمیات نے اس سے قبل جمعرات اور جمعے کو بھی پیشگوئی کی تھی کہ بارش ہوگی، مگر یہ انتظار کی گھڑی ختم نہ ہو سکی، اور یہ انتظار کی گھڑی آج دوپہر کو ختم ہوئی، اس وقت جب تیز ہوا کے ساتھ کہیں کسی علاقے میں تیز اور کسی علاقے میں ہلکی بارش کا سلسلہ شروع ہوا۔ دوسری طرف پی ٹی ایم نے بھی الرٹ جاری کیا ہے کہ جو تمام محکمے ہیں کسی بھی مشکل کی اس گھڑی میں جو اپنی جو زیادہ سے زیادہ جو مشینری اور افرادی قوت ہے اس کو استعمال کریں تاکہ کسی شہری کو کوئی نقصان نہ ہو۔ اس کے علاوہ پی ڈی ایم نے یہ بھی الرٹ جاری کیا ہے کہ شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کسی بجلی کے پول کے قریب نہ جائیں تاکہ بجلی کی کرنٹ بڑھنے سے کسی کو جانی یا مالی نقصان نہ ہو سکے۔ اور اسی طرح آج جو کم از کم درجہ حرارت ہے وہ 29 اور زیادہ سے زیادہ 39 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہا، جبکہ جو ہوا میں نمی کا تناسب ہے 57%، اور واقعی جو رفتار ہے 9 کلومیٹر فی گھنٹہ، اور جو حد نگاہ ہے 16 کلومیٹر تک ہے۔ جی شکریہ یاسین۔ پنجاب اسمبلی نے ضمنی بجٹ 2023-24 کی منظوری دے دی ہے۔ اپوزیشن کی عدم موجودگی میں 11 خرب 94 ارب 79 کروڑ 75 لاکھ 2,000 روپے کے مطالبات زر منظور کر لیے گئے ہیں۔ پنجاب اسمبلی نے امریکی کانگریس کی قرارداد کے خلاف مذمتی قرارداد بھی کثرت رائے سے منظور کر لی ہے۔ اپوزیشن نے پنجاب اسمبلی کے اجلاس سے احتجاجاً واک آؤٹ بھی کیا ہے۔ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ پنجاب اسمبلی نے ضمنی بجٹ 2023-24 کی منظوری دے دی۔ اپوزیشن کی عدم موجودگی میں 11 خرب 94 ارب 79 کروڑ 75 لاکھ 2,000 روپے کے مطالبات زر منظور کر لیے گئے۔ پنجاب اسمبلی نے امریکی کانگریس کی قرارداد کے خلاف مذمتی قرارداد بھی کثرت رائے سے منظور کر لی ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کے اپوزیشن پر لفظی حملے، کہا اپوزیشن لیڈر معاملہ طے کرنے کے باوجود اپنے ارکان کو نہیں سنبھال سکے۔ اپوزیشن کی جانب سے بےہودگی اور ہلڑ بازی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ اسمبلی میں اخلاقیات کے حوالے سے پارلیمانی کمیٹی بنانے کا اعلان کر دیا۔ پنجاب اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا کہنا تھا کہ گزشتہ روز وزیر اعلیٰ مریم نواز کے خطاب کے دوران تمام اخلاقی اور پارلیمانی روایات کو پامال کیا گیا۔ جائے کہ وہاں پر لوگوں کو یہ اجازت دے دی جائے کہ وہ لوگوں کو گندی ننگی گالیاں دیں، لوگوں کے والدین کے نام لے کر ان کے اوپر نعرے بازی کر کے کس کر بیہودہ نعرے کسے۔ کیا یہ اجازت دے دی جائے کہ پوری پارلیمنٹ کو، پوری اسمبلی کی پروسیڈنگ کو ہوسٹیج کر لیں اور وہاں پر وہاں پر آپ کوئی اور آواز ہی نہ سن سکیں سوائے ان بیہودہ نعروں کے؟ وہاں پر کیا یہ اجازت دے دی جائے کہ جب آپ کا دل کرے آپ کتابیں اکھاڑیں، ان کو پھاڑیں اور پھاڑ کر آپ ان کو پھینکنا شروع کر دیں ان لوگوں کی طرف؟ یہ ایک آدھا ٹوکن ٹائپ پروٹیسٹ، once a while you tear it off, it is parliamentary، یہ کوئی جلسہ نہیں ہے۔ ملک محمد احمد خان نے کہا کہ ماضی میں اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا، لیکن انہوں نے 4 ماہ کے دوران اپوزیشن کی تمام جائز باتوں کو ایوان میں لانے کی اجازت دی۔ اور اسپیکر میرے پہ ذمہ داری ہے کہ جہاں پر میں نے لوگوں کو فریڈم آف ایکسپریشن، جہاں پر میں نے ہاؤس کو ریگولیٹ کرنا، جہاں پر میں نے بائی پارٹیزن رہ کر ایکول اپرچونٹی دینا، جہاں پر مسائل کا حل کرنا،
जहाँ पर गवर्नमेंट को चेक करवाना, जहाँ पर अमन व अमा की सूरत हाल बुनियादी अर्जेंट मसाइल पर एडजर्नमेंट मोशंस के हिसाब से या जो भी प्रोसीजर हैं, कानून साजी है, इन सब के लिए अपने रेगुलेशन के मुताबिक हाउस का कंडक्ट करवाना मेरी फ़राइज़ मनसबी में शामिल है। मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और डेप्यूटी अपोजिशन लीडर से मराद वापस लेना मेरे इख्तियार में नहीं। गाड़ी को असम्बली में दाखिल होने से इसलिए रोका गया कि मुसल्लह अफराद के असम्बली में आने की इत्तला थी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि वज़ीर आला को ब्यूरोक्रेसी की जानिब से भी भरपूर साथ मिला है। काबीना की मीटिंग से लेकर हर जगह वज़ीर आला खुद हाजिर होती हैं। वज़ीर आला पंजाब को अपनी टीम से काम लेना आता है। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन कहते हैं पंजाब में आटे और रोटी की कीमतों में तारीखी कमी की गई। DGPR में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर इत्तलात और सकाफत अज़मा बुखारी ने कहा कि वजीर आला मरियम नवाज ने हुल्लड़बाजी के बावजूद असम्बली में सबसे बड़ी तकरीर की। वजीर आला को ब्यूरोक्रेसी की जानिब से भी भरपूर साथ मिला है। उनको अपनी टीम से काम लेना आता है। हर प्रोजेक्ट की खुद मॉनिटरिंग करती हैं। चीफ मिनिस्टर साहिबा हर एक हल्के के अंदर, वो किसी भी सियासी जमात का जीता हुआ हल्का है, तमाम के अंदर जो है वो एक जैसी तरक्की करना चाहती हैं। ये उनकी नई गवर्नेंस का मॉडल है। लाहौर के अंदर पूरा लाहौर रिवैम्प होने जा रहा है। उनमें वो लोगों के हल्के भी आ रहे हैं जो हमसे जीते हैं, लेकिन उनके हल्कों में भी वही तरक्की होगी। वैसी ही खूबसूरत सड़कें बनेंगी, वैसे ही खूबसूरत गलियां बनेंगी जैसी हमारे हल्कों में बनेंगी। सूबाई वजीर खुराक बिलाल यासीन का कहना है तमाम हुकूमती मशीनरी वजीर आला के साथ काम कर रही है। वजीर आला मरियम नवाज के इकदामात नजर आ रहे हैं। हुकूमत का काम महंगाई को कंट्रोल करना है। आटे और रोटी की कीमतों में रिकॉर्ड कमी की। मरियम नवाज शरीफ की तरफ देखें तो शानदार परफॉर्मेंस, 100 दिन में वो कारनामे जो किसी ने सोचे भी नहीं थे। अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अगर इसी स्पीड के साथ और इसी विजन के साथ और इसी क्लैरिटी के साथ मरियम नवाज शरीफ की और उनकी टीम इसी तरह दिन रात कोशिश करती रही तो वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान की अवाम सुख का सांस ले सकेंगे। और मैं निवाले के हवाले से बात करूँ कि 2 वक्त का उनको आसान रिस्क उनको मैसर होगा। सूबाई वज़रा का मजीद कहना था कि आम आदमी को सस्ता नवाला देने के लिए हर मुमकिन इकदामात किए जा रहे हैं। पंजाब इन्फोर्समेंट अथॉरिटी के क़याम से अशिया की कीमतों पर अमल दरामद होगा। इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं अज़्म इस्तेहकाम के नाम से किसी किस्म के ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान किसी भी ऑपरेशन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। IMF ने बजट बनाकर हुकूमत के ज़रिए पास करा लिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के अज़्म इस्तेहकाम के नाम से किसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान किसी भी ऑपरेशन का मुहतमिल नहीं हो सकता। माजी के ऑपरेशन से अगर हम नहीं हो सका तो अज़्म इस्तेहकाम से कैसे होगा। जमात इस्लामी ऑपरेशन के हक़ में नहीं। पाकिस्तान किसी भी फ़ौजी ऑपरेशन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता और अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम से जिस फ़ौजी ऑपरेशन की बात की जा रही है वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए नुकसानदेह है, पाकिस्तानी फ़ौज के लिए नुकसानदेह है। और जो तारीख़ है फ़ौजी ऑपरेशंस की वो भी इस बात पर गवाह है कि फ़ौजी ऑपरेशनों के नतीजे में अमन कायम नहीं हो सका। हाफिज़ नईमुर रहमान ने मज़ीद कहा कि ये तासिर देना चीनी बाशिंदे यहाँ महफूज नहीं। इससे लगेगा कि ऑपरेशन दबाव में शुरू किया जा रहा है। ऑपरेशन से इदारों और आवाम के दरमियान नफरत बढ़ती है। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में फोर्सेस लगा देना गलत फैसला है। अफगानिस्तान के साथ बातचीत के जरिए मामलात हल हो जाएंगे। अफगानिस्तान के साथ बातचीत के जरिए मामलात हल होने चाहिए। अफगानिस्तान का जो मामला है उसको किसी जज्बाती फ़िज़ा में तय नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अगर बदअमनी फैलेगी और दोस्त मुमालिक दुश्मन बनेंगे तो इस पूरे खित्ते के साथ क्या होगा, क्यों इसको जहन्नुम बनाना चाहते हैं। कल भी एक ही मसले का हल था और आज भी यही हल है कि अफगानिस्तान के साथ बामानी मुज़ाकरात किए जाएं। मैं इस मौके पर अफगान तालिबान से भी ये कहना चाहता हूँ। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर कहा कि IMF ने बजट बनाकर हुकूमत के जरिए पास करा लिया। ये हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। कैमरामैन मोहम्मद ज़ुहैब के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। लाहौर में पैगाम पाकिस्तान की गोल्डन जुबली तकरीब से खिताब में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं हमारे पास इतने पैसे नहीं कि बैरूनी कर्जे भी अदा किए जा सकें। चीन दोबारा पाकिस्तान को बड़ी मईशत बनाने में कोशा है। मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सबको मिलकर फैसला करना होगा। तकरीब से मुफ्ती रागिब हुसैन नईमी, मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद, कारी सदाकत अली और मुजीबुर रहमान शामी समेत दीगर शख्सियात ने भी इजहार ख्याल किया।
अलहमरा आर्ट्स कौंसल लाहौर में पैगाम पाकिस्तान की गोल्डन जुबली तकरीब वफाकी वजीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल, चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसल मुफ्ती रागिब नईमी, चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद, कारी सैयद सदाकत अली और सीनियर तज्जियाकार सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी समेत दीगर नामवर शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, हमें अपने माशरे से इंतशार का खात्मा करना होगा। हमारे पास इतने पैसे नहीं कि बैरूनी कर्जे भी अदा किए जा सकें। आज चीन ने एक बार फिर पाकिस्तान का हाथ थामा है। आज बहुत मेहनत के साथ दोबारा चीन ये कह रहा है कि हम आपकी पुष्ट के ऊपर खड़े होकर आपको एक मुआशी ताकत बनाने के लिए ताउन करने के लिए तैयार हैं। आपकी ज़राअत को जदीद बनाने के लिए आपकी मदद करेंगे, आपकी सनत को तरक्की देने के लिए मदद करेंगे, आपकी बरामदात को बढ़ाने के लिए मदद करेंगे, आपके 3 लाख नौजवानों को सालाना आईटी की तरबियत देंगे ताकि आप आईटी के दौर में एक ताकत बन सकें। पैगाम पाकिस्तान गोल्डन जुबली तकरीब से चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसल मुफ्ती रागिब नईमी, मौलाना अब्दुल खबीर आजाद और सीनियर तज्जियाकार और सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी ने अपने खिताब में पाकिस्तान को दहशतगर्दी की लानत से जड़ से उखाड़ने के अज़म को दोहराया। तकरीब के इख्तिताम पर वफाकी वजीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल ने मेहमानाने ग्रामी को शील्ड्स पेश की। घर से नाराज होकर जाने वाली लड़कियों को अगवा करके जिस्म फरोशी करने वाले गिरोह को पकड़ लिया गया है। लाहौर के ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट की कार्रवाई की है। पुलिस ने 3 लड़कियों को बाजियाब करके मरकजी मुलजिमा को हिरासत में ले लिया। लड़कियों को अगवा करके जबरदस्ती जिस्म फरोशी करवाने वाले 3 रुकनी गिरोह को लाहौर के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट ने गिरफ्तार कर लिया। डीआईजी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट इमरान किश्वर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि नमाकोट लाहौर से अगवा होने वाली 16 साला महानूर को फैसलाबाद से बाजियाब करवाया गया। मुलजिमा मुमताज बीबी बच्चियों को पार्लर और नौकरी का झांसा देकर पैसों के एवज जिस्म फरोशी करवाती थी। एक नवाकोट से बच्ची अगवा होती है महानूर 1 साल पहले, और उसकी जो है वो एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई, लेकिन वो एक बच्ची जो है वो हमारे साथ किसी तरह से इनडायरेक्टली कनेक्शन में आती है और उसके बाद फिर हमारी तफ्तीश शुरू हो जाती है ओसीयू की टीम्स की। महानूर को ट्रेस करते करते हम एक मुमताज़ बीबी को हमने अरेस्ट किया और उसके बाद फिर उसकी पॉइंटेशन पे हमने जब रेड किया फैसलाबाद में तो महानूर को अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहिफाजत वहाँ रिकवर किया। उसके साथ 2 और लड़कियाँ भी वहाँ से कोमल और आयशा उर्फ मुस्कान, ये बच्चियां भी बरामद हुई। मुतासरा लड़कियों ने बताया कि उन्हें मुलजिमा ने 5 साल से फैसलाबाद में एक घर में अगवा करके रखा। मुमताज नामी खातून जबरदस्ती जिस्म फरोशी करवाती, जान से मारने की धमकियां दी जाती। अगर मैंने इसको कहना ना कि मुझे एक मुलाकात मेरे घर वालों से करवा दो तो ये आगे से मेरे पे तशद्दुद करती थी, मुझे मारती थी और जहाँ पे रहते थे वो घर से बाहर नहीं थे जाने देते। जब मैं कहती थी कि मैंने नहीं करना ये काम, आगे से शदद और मारती थी कि धमकाती थी कि वो तुम्हें मार देगी, ये कर देगी, वो कर देते। काफ़ी इसने डरा के हमें रखा हुआ था। लोन के काम में इन्होंने मुझे भी ऐसे ही बहकाया जैसे इन लोगों को बहकाया और मुझे कहती कि सब कुछ सेटल हो जाएगा, आपका कुछ ख़राब नहीं होगा, आप काम करेंगी अच्छी। डीआईजी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट इमरान किश्वर का मजीद कहना था कि जराइम पेशा गिरोह के मजीद अरकान को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ मुदस्सिर हुसैन, लाहौर न्यूज़। यूसीपी आईटी की तरवीज में भी सबसे नुमाया यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की शानदार नुमाइश। तलबा ने मौजूदा दौर के मसाइल ऐप्स तैयार की जिन्हें टेक इंडस्ट्री की नामवर शख्सियात ने खूब सराहा। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ में भी 2 कदम आगे। फैकल्टी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस के ज़रिए एहतमाम शानदार नुमाइश। 250 से ज़ायद तलबा और तालिबात ने ओपन हाउस में फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स पेश किए। मौजूदा दौर के मसाइल पर मबनी टेक एप्लीकेशन और दीगर प्रोजेक्ट्स को टेक इंडस्ट्री की नामवर शख्सियात ने खूब सराहा। तकरीब के मेहमान खुसूसी डिविजनल सुपरिटेंडेंट रेलवे लाहौर हनीफ गुल थे। तकरीब में मौजूद टेक कंपनियों के मालिकान का कहना था कि यूसीपी की जानिब से ओपन हाउस नुमाइश का इनेकाद खुश आइंद है। तलबा और तालिबात की एप्लीकेशंस जदीद दौर के मुताबिक हैं। इन लोगों ने, बच्चों ने जो काम किया है, जो मैंने ऐप्स देखी हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कैंसर के जो सेल डिटेक्शन से रिलेटेड ऐप्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की एवेलुएशन है उसके हवाले से हैं, इस तरह से मज़ीद फील्ड्स में जो एक्सप्लोर किया गया वो काम बड़ा कमेंडेबल है। आईटी में आगे बढ़ने के लिए हमें ऐसे ही बच्चों की ज़रूरत है जो आज जो हमें मिलें, और मैं बड़ा फ़ख्र कर रहा हूँ कितने अच्छे आइडिया सामने आए और टेक इंडस्ट्री से बहुत से लोग आए। हम भी यहाँ से कुछ बच्चों को
हायर करने का प्लान कर रहे हैं। तलबा का कहना था कि मौजूदा दौर के मसाइल को देखते हुए एप्लीकेशंस को डिज़ाइन किया। ओपन हाउस के जरिए अपनी सलाहियतों के इजहार का मौका मिला है। हमने एक पेट बुक ऐप बनाई है जहाँ पे पेट्स की सारी प्रोफाइल्स वगैरह उनका डाटा शेयर होगा और उनकी हम लोग उनको वेटनरी हाउसेस जैसे नहीं मिलते अक्सर पेट्स वगैरह के ओनर्स को ना, तो उस पर हमने गूगल मैप्स के थ्रू वेटनरी हाउसेस की उनको लोकेशन शेयर किया ताकि उनके लिए ईजिली एक ही प्लेटफॉर्म पे उनको सब चीज़ें प्रोवाइड हो सके। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर टेक जो कंपनीज आ रही हैं वो हमें फंडिंग करें ताकि हम इस ऐप को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा सकें, इंटरनेशनल तो कम से कम नेशनल लेवल पे लेके जा सकें कि पाकिस्तान में हम इसको लॉन्च करें। तकरीब में मौजूद टेक कंपनीज के मालिकान ने प्रोजेक्ट्स की अफादियत को देखते हुए बाज़ की फंडिंग का भी ऐलान किया, जबकि पहली 3 पोजीशंस वाले प्रोजेक्ट्स तैयार करने वाले तलबा को नकद इनामात दिए गए। लाहौर चैम्बर की इंतखाबी दंगल से कबल ग्रुप बंदियां जारी हैं। शहर की बड़ी और तारीखी आज़म क्लॉथ मार्केट और ऑल पाकिस्तान आयरन स्टील मर्चेंट एसोसिएशन ने बड़ा फैसला ले लिया। प्याब सुहेल निसार ग्रुप की मुकम्मल हिमायत, स्पोर्ट और वोट का ऐलान कर दिया। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इंतखाबात मुख्तलिफ ग्रुपों की जानिब से सफ बंदियों का सिलसिला जारी है। प्याब सुहेल निसार ग्रुप को लाहौर की बड़ी मार्केट से कामयाबी, आजम क्लॉथ मार्केट की जानिब से सुहेल निसार और नासिर हमीद की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। सदर आजम क्लॉथ मार्केट ने प्याब सुहेल निसार ग्रुप की हिमायत कर दी। कहते हैं लाहौर चैम्बर के इलेक्शन में सुहेल निसार और नासिर हमीद के साथ खड़े हैं। इलेक्शन में आजम क्लॉथ मार्केट भरपूर वोट कास्ट करेगी। प्याब सुहेल निसार ग्रुप की जीत को यकीनी बनाएंगे। ताजरों के मसाइल के हल के लिए सुहेल निसार ग्रुप की हिमायत का ऐलान किया है। सुहेल निसार साहब और नासिर हमीद साहब की तरफ ही जाएंगे, उनके साथ ही हैं, उनको वोट देंगे क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि वो अच्छे बंदे हैं और अच्छा काम करेंगे और चैम्बर के लिए भी अच्छा काम करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे आगे मार्केट का कोई मसला मसाइल हुआ तो वो भी करेंगे। ऑल पाकिस्तान आयरन स्टील मर्चेंट एसोसिएशन ने सुहेल निसार, नासिर हमीद और इरफान इकबाल शेख की हिमायत कर दी। पैटर्न इन चीफ ऑल पाकिस्तान आयरन स्टील मर्चेंट एसोसिएशन अंजुम महमूद भट्ट ने लाहौर चैम्बर के इंतखाबात में नासिर हमीद और सुहेल निसार की सपोर्ट का ऐलान कर दिया। अपने वीडियो पैगाम में अंजुम महमूद भट्ट ने कहा कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शंस में सुहेल निसार ग्रुप को वोट और सपोर्ट का बाकायदा ऐलान कर दिया है। इरफान इकबाल और नासिर हमीद ये मेरे इंतहाई करीबी भाई हैं और मैं इस इलेक्शन में उनका साथ। प्याब सुहेल निसार ग्रुप को बड़ी मार्केटों और कारोबारी एसोसिएशंस की हिमायत के बाद चैम्बर इंतखाबात में पोजीशन बेहतर हो रही है। अदलिया में मुखालफत पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम का बड़ा फैसला। मुदाखलत रोकने के लिए 5 निकाती SOPs जारी कर दिए। वज़ीर आज़म ऑफिस और हसास इदारों को आला और मातहत अदलिया के किसी भी जज या उनके अमले को अप्रोच न करने की हिदायत जारी कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने ATC जज सरगोदा पर दबाव डालने से मुताल्लिक अज खुद नोटिस कोर्ट पटिशन में तब्दील कर दिया। अदलिया में मुदाखलत रोकने के 5 नुकाती SOPs जारी कर दिए गए। अदालत के 4 सफ़हात पर मुश्तमिल अबूरी हुक्मनामे में कहा गया कि वज़ीर आज़म ऑफिस और हसास इदारों समेत तमाम को हिदायत जारी की जाए कि वो मुस्तकबिल में आला अदलिया और मातहत अदलिया के किसी भी जज या उनके अमले को अप्रोच न करें। IG पंजाब तमाम पुलिस अफसरान को हिदायत जारी करें कि वो आला अदलिया और मातहत अदलिया के किसी जज से उसकी अदालत में ज़ेर समाअत केस के हवाले से बराह रास्त राब्ता न करें। पंजाब में इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों की सिक्योरिटी के हवाले से हिफाजती इकदाम मुतल्लिका जज से मुशावरत और इत्तेफाक राय के बगैर नहीं किए जाएंगे। खिलाफ वर्जी पर IG पंजाब और मुतल्लिका डिवीजन या जिला का चीफ पुलिस अफसर जाती तौर पर जिम्मेदार होगा और उसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाएगी। पंजाब भर की तमाम इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों के जजेस को हिदायत जारी की जाती है कि वो अपने मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन डाउनलोड करें और ऐसी तमाम कॉल्स रिकॉर्ड करें जिससे उन्हें खदशा हो कि ये कॉल उनकी अदालत में ज़ेर समाअत केस पर असर डालने के लिए की जा सकती है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों के जजेस को 9 मई 2023 के केसेस का तरजीही बुनियादों पर फैसला करने की हिदायत भी की गई। जस्टिस शाहिद करीम ने ATC सरगोदा के जज को हिदायत जारी की कि वो और उनका अदालती अमला तफ्तीश में ताउन करें। तफ्तीश की वीडियो रिकॉर्डिंग पुलिस अपने पास संभाल कर रखे और उसे हाई कोर्ट को भी फराहम किया जाए। अदालत ने एडवोकेट हिना हफीजुल्लाह को अदालती मुआवन मुकर्रर करते हुए कार्रवाई 8 जुलाई तक मुलतवी कर दी। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकर्री सीनियरिटी के मुताबिक करने का मामला। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार हामिद खान, नायब सदर सुप्रीम कोर्ट बार, सदर लाहौर हाई कोर्ट बार, मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल ने लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की तकर्री सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं अगर ऐसा ना किया गया तो तकर्री को चैलेंज करने के साथ साथ वुकला सड़कों पर निकलेंगे।
लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की सीनियरिटी के मामले पर तकर्रुरी के लिए प्रोफेशनल ग्रुप के सरबराह और साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार हामिद खान, नायब सदर सुप्रीम कोर्ट बार, सदर लाहौर हाई कोर्ट बार असद मंजूर भट्ट, मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल इश्तियाक खान और शफकत महमूद चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हामिद खान ने कहा कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तकर्रुरी के लिए सीनियरिटी के असूल को मद्देनजर रखा जाए। अल जिहाद ट्रस्ट केस के मुताबिक जजेस की तैनाती होनी चाहिए। हमारा ये मुतालबा है कि जजेस केस की पाबंदी की जाए, अल जिहाद ट्रस्ट के मुताबिक अपॉइंटमेंट्स की जाए। इसमें 2 अपॉइंटमेंट सामने आई हैं, एक सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की और दूसरी लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की। दोनों में जो सीनियर मोस्ट जज है इस वक्त दोनों हाई कोर्ट्स के, उनको चीफ जस्टिस लगाया जाना चाहिए। मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल इश्तियाक खान और शफकत महमूद चौहान ने कहा कि इस मुल्क में आइन की पासदारी होगी। हमारी किसी जज से हमदर्दी नहीं, हम सीनियरिटी के असूल पर अमल चाहते हैं। जुडिशल सिस्टम में सियासत नहीं होनी चाहिए। सिस्टम की बेहतरी के लिए मेरिट को प्रमोट करें। अगर कोई जज ठीक नहीं तो उसे फारिग करें। अल जिहाद ट्रस्ट केस की खिलाफ वर्जी पर हर हद तक जाएंगे। किसी भी दूसरे जज की एलिवेशन की बाबत आप नाम भी कंसिडर करेंगे या उनको अपॉइंट करने की कोशिश करेंगे इन दी गार्ब ऑफ कि जी वोट उसके हक में ज़्यादा आए हैं, तो हम तहरीक भी चलाएंगे, हम जुडिशली इस एलिवेशन को चैलेंज भी करेंगे और हम सड़कों पे भी आएंगे। एक ही बात का एजेंडा है, वो है मेरिट का, और वो हमारा मेरिट इस वक्त वही है कि अल जिहाद ट्रस्ट केस जो है उसके मुताबिक सीनियर मोस्ट जज को ही चीफ जस्टिस होना चाहिए। और ये 3 जजेस का जो नाम पैनल पे भेजा गया है, ये फर्स्ट क्रिएट की गई है, ये अल जिहाद ट्रस्ट की वायलेशन है और हम इसके लिए हर हद तक जाएंगे। सदर लाहौर हाई कोर्ट बार असद मंजूर भट्ट और नायब सदर सरदार अली ने मुतालबा किया कि लाहौर हाई कोर्ट में सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जाए। अपराइट जुडिशरी को लाने के लिए सीनियरिटी के प्रिंसिपल को मेंटेन किया जाना चाहिए, जो कि वक्त के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के ज़रिए और लॉन्ग स्टैंडिंग प्रेसिडेंट्स के ज़रिए ये बात वाज़ेह है कि हम सीनियरिटी के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए ही मुल्क में सही हसूल इंसाफ की जुडिशरी कायम कर सकते हैं। चीफ जस्टिस की तैनाती वो जो सीनियरिटी की बेस पे होगी, हमारे लिए तमाम जजेस काबिल एहतराम हैं, बट जिसका जो नंबर है उस नंबर पे ही वो चीफ जस्टिस बनेगा। जो आने वाले हैं हमारे मोहतरम जजेस